નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત કાર્યક્રમ હોટ ટોપિક અંતર્ગત હું ધ્રુવી ત્રિવેદી આપનું સ્વાગત કરું છું આજના વિશેષ મુદ્દા સાથે, એટલે કે હિન્દી દિવસ સાથે। હવે આજનો આ દિવસ 14 સપ્ટેમ્બર 2021 આજની તારીખ અને 14 સપ્ટેમ્બર 1949 થી આ હિન્દી દિવસ ઉજવવાની શરૂઆત થઈ રહી છે। આપને જણાવીએ, ખાસ કરીને હિન્દી દિવસ ઉજવવાની શરૂઆતની સાથે સાથે જો વાત કરીએ તો ઘણી બધી રીતે ઇતિહાસને લઈને પણ આજના દિવસની વિશેષતાઓ છે અને આજના દિવસને લઈને ઘણી બધી વાતો પણ છે જે આપણે કરવાના છે। વિશ્વની અંદર આટલી બધી ભાષાઓ છે અને આટલી બધી ભાષાઓની અંદર અગણિત ભાષાઓ વચ્ચે હિન્દી એનું પ્રભુત્વ, એનું ખાસ કરીને જો વાત કરીએ તો એનું જે સ્ટેટસ છે હિન્દીની સાથે આપણે જે દેશની અંદર રહીએ છીએ, ભારત દેશ વિવિધતાની એકતાવાળો દેશ કહેવાય છે। અન્ય અલગ અલગ જાતિની જેમ અલગ અલગ ભાષાઓ, દરેક રાજ્યની પોતાની ભાષા છે, રાજ્યની અંદર પણ અલગ અલગ ભાષાઓ પડતી હોય છે। જેમ ગુજરાતની જો આપણે વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં પણ સૌરાષ્ટ્રી ભાષા અલગ હોય, કાઠિયાવાડી ભાષા અલગ હોય, સુરતી ભાષા અલગ હોય, મહેસાણાની ભાષા અલગ હોય, અમદાવાદની ભાષા અલગ હોય, એમ દેશની અંદર પણ અલગ અલગ પ્રકારની ભાષાઓ છે અને આ તમામ ભાષાઓ પરથી હિન્દી એ આપણી રાષ્ટ્રીય ભાષા છે। એટલે હિન્દીનું મહત્વ તો વિશેષ છે જ, પણ એના વિશેષ મહત્વને દેશ સમજી રહ્યો છે કે કેમ। વિશ્વના અલગ અલગ દેશો હિન્દીને પ્રાધાન્ય આપતા હોય છે, ત્યારે ભારત એ પ્રાધાન્ય પોતાની રાષ્ટ્રીય ભાષાને આપી રહ્યું છે કે કેમ। આ તમામ બાબતો વિશે આપણે વાત કરવાના છે અને તે માટે આપણી સાથે કાર્યક્રમ અંતર્ગત જોડાઈ ચૂક્યા છે શરદભાઈ જોશી, ગુજરાતના ખાસ કરીને રાષ્ટ્રીય ભાષાના સમિતિના ખાસ મેમ્બર છે। શરદભાઈ, આપનું સ્વાગત છે આ કાર્યક્રમની અંદર। અને અન્ય તરફ આપણી સાથે જોડાયેલા છે અંજનાબેન સંધીર, પ્રોફેસર છે, સાથે સાથે તેમને હિન્દી સાહિત્ય ગૌરવ પુરસ્કાર પણ હમણાં સન્માનિત થયા છે। તો અંજનાબેન, આપનું પણ સ્વાગત છે કાર્યક્રમમાં। શરદભાઈ, આપની પાસે પહેલા આવવા માંગુ, ખાસ કરીને હિન્દી દિવસની આપણે આજે વાત કરી રહ્યા છે, હિન્દી દિવસ ઉજવી રહ્યા છે। હવે હિન્દીનું જે મહત્વ છે એ તો આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ, એની વાતો પણ આગળ કરીશું ચોક્કસ કે મહત્વ જેટલું જાણીએ છીએ એટલું આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ છીએ કે કેમ, અથવા એટલું એકચ્યુઅલી મહત્વ એને આપીએ છીએ, ઇમ્પોર્ટન્સ એને આપીએ છીએ કે કેમ। પણ આજનો દિવસ ઉજવવા પાછળનું કારણ શું છે? ऐसा है कि 14 सितंबर 1950 भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया। जो स्थान राजभाषा को दिया, हिंदी को दिया गया, देखना शुरू हुआ। एक राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता महात्मा गांधी से प्रेरित हिंदी के समर्थ श्री जेठालाल जी जोशी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के 1953 में एक राष्ट्रीय आयोजन था, राष्ट्रीय सम्मेलन था। उस सम्मेलन में वे उपस्थित थे। उन्होंने वहां 14 सितंबर को चाहिए ऐसा प्रस्ताव रखा। सम्मेलन में तालियों के गड़गड़ाहट के प्रस्ताव किया। भारत सरकार को भी यह कहा कि आप भी यह हिंदी दिवस मनाना शुरू करें। तब से यह हिंदी दिवस मनाना शुरू हुआ। આપણે વાત કરી છે કે કઈ રીતે સંવિધાનની અંદર હિન્દીને રાષ્ટ્રભાષાનો દરજ્જો મળ્યો અને આજની તારીખ એટલા માટે વિશેષ છે, આજના દિવસે શા માટે મનાવવામાં આવે છે હિન્દી દિવસ, એની ચોક્કસ વાત કરી છે। આપની પાસે આવવા માંગુ અંજનાબેન, હવે હિન્દી દિવસની જ્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છે, દર વર્ષે આજના દિવસે હિન્દી દિવસ ઉજવવામાં આવે છે। વર્ષ 1949 મને જ્યાં સુધી ખ્યાલ છે રાષ્ટ્રીય ભાષાનો દરજ્જો હિન્દીને 14 સપ્ટેમ્બર 1949ના રોજ મળ્યો હતો અને ઘણી બધી મહેનત પણ લાગી છે, ઘણા બધા લોકોએ આની પાછળ કામ કર્યું છે હિન્દીને ભાષા તરીકેનો દરજ્જો અપાવવા માટે। એના માટે આજનો દિવસ એના માનમાં ઉજવવામાં આવે છે। मेरे से पूछ रही हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि हिंदी 1950 से शुरू की, शरद जी ने अभी बताया, उसका संविधान बनाया, उस किस तरह से बात हुई और पूरे देश में ये बनाना शुरू हुआ। ये कोई भी भाषा एकदम आम लोगों तक नहीं पहुंच सकती है, लेकिन एक हिंदी ही हमारे देश में ऐसी भाषा है जो हर आम आदमी के लिए जरूरी है।
आप अहमदाबाद से निकल के महसाना में जाइए तो महसाना टाइप हिंदी हो जाएगी, पंजाब में जाइए पंजाब टाइप हिंदी हो जाएगी, वहां जाइए वहां। तो हिंदी जो है वो धीरे धीरे उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम ये सबको जोड़ने का एक ऐसा लिंक है जो उन्होंने बताया कि एक दिन तय कर दिया गया कि हाँ भाई ये आज 14 सितंबर को हमने इसको मनाना है। ये तो एक दिन डिसाइड हो गया, लेकिन दिन धीरे 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 हमारा ये माना जाने लगा कि जितनी भी हमारी सरकारी संस्थाएं हैं सब जगह पर इसका, आपको मालूम है गांधी जी जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उसने बीबीसी ने जब उनका इंटरव्यू लिया तो गांधी जी का पहला स्टेटमेंट ये था कि लोगों से कह दो कि गांधी अंग्रेजी भूल गया, यानी उन्होंने हिंदी में बात करना शुरू किया। और उस दिन से ये आप देखिए धीरे 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 आज तो ये सिचुएशन हो गई है कि अभी आपको मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ओलंपिक जो हुआ है उस ओलंपिक के अंदर पहली बार सारी भाषा में वॉलिंटियर वर्ड जो है उसको उन्होंने हिंदी में लिखा है, हिंदी में, यानी स्वयं सेवक शब्द। तो आप सोचिए कि 50 से लेकर आज तक हिंदी कहाँ पहुंच गई। સાચી વાત છે અને આ અસ્તિત્વની સાચવણી આપણે બધાએ મળીને કરવાની છે, કારણ કે આપણી એક ધરોહર છે રાષ્ટ્રીય ભાષાને સાચવવી અથવા તો એના જે ઉત્તરોત્તર એની પ્રગતિ કરવા માટેની અથવા તો એનું સન્માન વધારવા માટેની જવાબદારી તમામ દેશવાસીઓની આવી જતી હોય છે। દેશના કોઈ પણ ખૂણામાં રહેતો હોય પણ તેની રાષ્ટ્રીય ભાષા સાચવવાની જવાબદારી એ તમામ નાગરિકોની મળીને રહેતી હોય છે। પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આ જાળવણી યોગ્ય રીતે નથી થઈ રહી એવું પણ લાગી રહ્યું છે। ચોક્કસ એ વાત પર પણ આવીશું। પણ વાત છે ઇતિહાસની, જો વાત કરીએ તો ઘણા બધા લોકોએ હિન્દી વિશેનું મહત્વ આપણને સમજાવ્યું છે। ગાંધીજીની વાત હોય કે અન્ય નેતાઓની વાત હોય। શરદભાઈ આપની પાસે આવવા માંગુ, નેતાઓ તો હિન્દીનું મહત્વ સમજાવી ચૂક્યા છે પણ હજુ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આજના લોકો અથવા આજની યુવા પેઢી એ મહત્વ નથી સમજી રહ્યું એવું લાગી રહ્યું છે આપને? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ऐसा लग रहा है कि हिंदी के लिए छात्रों में भी जागरूकता आई है, एक नई चेतना आई है। अब हिंदी की परीक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या देखते हैं तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की जो परीक्षा है जिससे मैं जुड़ा हूं, इसीलिए मैं कर सकता हूं कि साल भर में करीबन 3 लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं। और इतना ही नहीं, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के साथ अन्य संस्थाओं पे भी परीक्षा होती है, उनमें भी हिंदी की परीक्षाओं छात्रों की संख्या बढ़ती है। आज भारतवर्ष के बाहर भी करीबन 200 यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदी के लिए प्रेम बढ़ा है, हिंदी के लिए जागरूकता बढ़ी है। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय वर्धा में जो स्थापित है वहां भी बीबीए और एमबीए का जो अभ्यासक्रम है वो हिंदी से देना शुरू कर दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में भी हिंदी माध्यम से आप मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। तो आप समझ लो कि हिंदी का वातावरण अब बन रहा है। भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 9,000 वेबसाइट हिंदी में है। आप समझो कि हिंदी के लिए आज एक वातावरण बन रहा है, लेकिन संसद में या कोई जगह पर कभी कभी ऐसा लगता है कि अंग्रेजी हम पर हावी है। ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है, होना जरूरी नहीं है। ये जो वातावरण बन रहा है, अभी आप समझो कि भारत सरकार की सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2 वर्ष से अपने जो निर्णय थे अंग्रेजी में दे रहे थे उनको हिंदी में और प्रांतीय और 5 भाषाओं में अनुवादित करके देना शुरू किया है। यह भी एक हिंदी के लिए बड़े आनंद और गौरव की बात है। વાત એ છે કે ભારતીયો માટે હિન્દીની જગ્યા, હિન્દીનું સ્થાન છે, હિન્દી ભાષાનું જે સ્થાન છે એ સ્થાન બીજી કોઈ ભાષા લઈ જ નથી શકવાનું। પણ વધતી જતી ટેકનોલોજીની અંદર જે ખાસ કરીને
વેસ્ટર્ન કલ્ચરનો જે મોહ વધી રહ્યો છે, ન માત્ર ડ્રેસ સુધી સીમિત રહ્યો છે પણ એ હવે ભાષા સુધી પણ આપણને સીમિત હોય એવું લાગી રહ્યું છે. કારણ કે આપણે જોઈએ છે કે હિન્દી મીડિયમ કે ગુજરાતી મીડિયમની શાળાઓ કરતાં ઇંગ્લિશ મીડિયમની અંદર વાલીઓ પોતાના બાળકોને વધારે પ્રેફરન્સ આપી રહ્યા છે ભણાવવા માટે. એટલે ક્યાંક એવું છે કે ઇંગ્લિશની ઉપર ખાસ જે ઇંગ્લિશ શીખવાનો જે મોહ છે અથવા તો અંગ્રેજી માધ્યમનો જે મોહ છે એ મોહ હિન્દીને ક્યાંક અંડર એસ્ટિમેટ કરી રહ્યું છે. तो ऐसा नहीं है. ऐसा है कि हमें एक भ्रम में रखा गया है कि अंग्रेजी भाषा से ही ज्ञान मिलता है, अंग्रेजी भाषा ही समृद्ध भाषा है, अंग्रेजी से भी ही हम पढ़ सकते हैं और अन्य किसी भाषा से नहीं पढ़ सकते, अन्य किसी भाषा से ज्ञान नहीं मिलता, अन्य किसी भाषा से कोई जानकारी नहीं मिलती. यह एक गलत फहमी है. ऐसा नहीं है. आइंस्टाइन भी कहा अंग्रेजी में पढ़े थे, आइंस्टाइन उबरी भाषा में पढ़े थे, उबरी भाषा में वो नोबेल पारितोषिक तक गए. ऐसा नहीं है कि एक ही सिर्फ और अंग्रेजी भाषा. सारे विश्व में देखो, जापान जाओ, चीन जाओ, जर्मन जाओ, फ्रांस जाओ, रशिया जाओ, वहां सब अपनी भाषा में काम करते हैं, वो अंग्रेजी नहीं है. आप अगर अंग्रेजी की बात कर रहे हैं तो मैं बताऊं, एक चौंकाने की बात है, एक आनंद की भी बात है. ब्रिटेन में अंग्रेजी के बाद अगर कोई भाषा आती है जो ब्रिटेन के रहने वाले लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं और समझते हैं, वो हिंदी भाषा है. आप समझ लो कि हिंदी भाषा का महत्व कितना है. સાચી વાત છે. હા, વાત સાચી છે શરદભાઈ આપની કે ખાસ કરીને બ્રિટનની અંદર પણ અને જો વિશ્વની અંદર પણ જો વાત કરીએ તો વિશ્વની અંદર પણ અંગ્રેજી, સ્પેનિશ, મંદારિન બાદ હિન્દી એ દુનિયામાં સૌથી વધારે બોલનારી ભાષા છે. પણ વાત એ જ છે, મારો સવાલ એ છે, અંજનાબેન આપની પાસે આવવા માંગુ કે વિશ્વ તો અલગ અલગ દેશો જે છે એ હિન્દીનું મહત્વ સમજી રહ્યા છે, એ ઇન્ડિયન સંસ્કૃતિને પણ એક્સેપ્ટ કરી રહ્યા છે, હિન્દીને પણ એક્સેપ્ટ કરી રહ્યા છે અને સૌથી વધારે હિન્દી બોલાઈ પણ રહી છે ત્યાં પોતાની મધર ટંગ લેંગ્વેજ પછી પણ ઘણા બધા કન્ટ્રીઝમાં દેશોની અંદર એવું છે કે હિન્દી વધારે બોલાતી હોય છે. પણ સાથે સવાલ એ છે કે ઇંગ્લિશવાળા કલ્ચરની અંદર ઇંગ્લિશ શીખવામાં લોકો એટલા બધા વ્યસ્ત થઈ રહ્યા છે કે હિન્દીનું મહત્વ ભૂલીને બેઠા હોય એવું લાગી રહ્યું છે આપને? नहीं, मैंने जरा ही नहीं लाग रही हूँ. मुझे बिल्कुल इसका शरद जी ने सही कहा है. मैं बता रही हूँ, 15 साल अमेरिका में रही हूँ. मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, प्रिंसटन में पढ़ाया, स्टोनी ब्रुक में पढ़ाया. यहाँ आने के बाद पिछले 10 साल से मैं यहाँ विद्यापीठ में पढ़ा रही हूँ. हमारे पास इतने बच्चे आते हैं हिंदी पढ़ रहे हैं. धीरे धीरे आप देखिए कि हमारे बच्चे भी इस बात को मानने लग गए हैं कि हमारे कार्टून सारे हिंदी में आने लग गए हैं. आप देखिए, जब भी अभी तो बहुत कुछ बदल गया है. अंग्रेजी के जितने अखबार हैं उनको ये मानना पड़ा कि उनको सारे उनके एडिशन हिंदी में छापने पड़ेंगे, क्योंकि आम आदमी तक पहुंचना है तो उसको अपनी भाषा को चेंज करना पड़ेगा. आज हिंदी के कार्टून सारे के सारे, आप देखिए शिनचैन जो है जापानी कार्टून है, ये सारे कार्टून इंडिया में हिंदी में आ रहे हैं. तो हमारे बच्चों को हिंदी में देखने की क्या जरूरत है? अगर उनको अंग्रेजी का इतना ही भाव है तो अंग्रेजी में देखें. लेकिन नहीं, हमारी भाषाओं के अंदर वो आ रहे हैं, तमिल में भी जा रहे हैं, दूसरी भाषा में जा रहे हैं. तो आज जो चीजें दिखती है ना, आपको लग रहा है कि हिंदी का महत्व जो है बच्चों को अभी इतना इंटरेस्ट नहीं. अंग्रेजी का महत्व है. मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं करती हूँ, मैं अंग्रेजी की प्रोफेसर भी हूँ. तो मैं विदेशी बच्चों को हिंदी पढ़ाती हूँ, इंडियन बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ. लेकिन उनको मैं ये बोलती हूँ कि 3 भाषा का फॉर्मूला बहुत जरूरी है. आपको आपकी मातृभाषा में ही पहले सीखना है. आपकी मातृभाषा अगर आपको अच्छी आती है तो आप कुछ भी करेंगे, तो आप कुछ भी सीख सकेंगे. लेकिन अगर मातृभाषा ही हमें अच्छी नहीं आती, हूँ गुजराती हूँ तो गुजराती में बोलूँ, पर गुजराती बोलना चाहिए. पर बाहर की पब्लिक में जाना है तो हिंदी ही बोलना चाहिए. लेकिन दूसरे लोगों को इंटरनेशनली अगर आपको चलना है तो आपको आज देखिए जो सारी टेक्नोलॉजी है, अंग्रेजी ने अपने लिए, जो मैं बताना चाह रही हूँ ये है कि अंग्रेजी जो है वो अपने लिए स्पेशल काम कर रही है जो हमारे यहाँ नहीं हो सकता. हमें सिर्फ मानसिकता बदलने की जरूरत है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सब लोग हिंदी समझते हैं. और आज तो हिंदी सीखने के बाद आप ये कहें कि हमें जॉब नहीं मिलता है, मेंटालिटी चेंज हो गई है. अभी बहुत जगह पे हो रहा है काम, और सारा आप देखिए हमारे जो कार्टून डब हो रहे हैं वो सारे हिंदी में हो रहे हैं. तो कितना सारा काम है, ट्रांसलेशन का काम कितना हो रहा है. धीरे 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 लोगों के माइंड चेंज हो रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं. और उनको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, इसलिए कि दुनिया को ये बताना है कि हम क्या है. दुनिया को बताने के लिए अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है.
लेकिन अच्छी बात है। हमारी भाषा के उसके ऊपर छोड़कर और आप दूसरे को सीखेंगे ऐसा नहीं है। तो 3 भाषा फॉर्मूला मैं રાઈટ હંમેશા રાઈટ રાઈટ બોલती हूँ। અંજનાબેન બીજી એક વાત આની અંદર એડ કરીને હું આપને એ પૂછવા માંગીશ કે એક સ્ટેટસ કારણ કે મેં ખુદે આનો અનુભવ કર્યો છે આ વસ્તુનો કે ઘણી બધી જગ્યાએ મેં જોયું છે કે ભાષા એ કોમ્યુનિકેશન માટેનો એક માર્ગ છે મારે કોઈ પર્સન સાથે કોમ્યુનિકેટ કરવું છે એ ઇંગ્લિશ સમજે છે તો મારે એની સાથે ઇંગ્લિશમાં વાત કરવી પડશે એ હિન્દી સમજે છે આઈધર ઓર ઇંગ્લિશની હિન્દીની અંદર મારે વાત કરવી પડશે પણ વાત હવે ભાષાની જ્યારે વાત આવે છે ને ત્યારે ભાષા સ્ટેટસ માટેનો સવાલ થઈ ગઈ છે ઘણા બધા એવા વર્ગો મેં જોયા છે ઘણા બધા એવા લોકો મેં જોયા છે કે ઇંગ્લિશ આવડે તો એમનું સ્ટેટસ ઊંચા લેવલનું કહેવાય આવી મેન્ટાલિટીઓ ધરાવે છે હજુ પણ ઘણા બધા લોકો અને હિન્દી તો તમામ લોકોને આવડે સામાન્યથી સામાન્ય લોકોને પણ આવડે તો એમાં સ્ટેટસ એમનું ડાઉન થઈ જતું હોય છે नहीं, ये सिर्फ मेंटालिटी की बात है। लोगों को लगने लगा कि हाँ, अरे हम अंग्रेजी में बोलेंगे। आपको मैं बता दूं, मैं अंग्रेजी की प्रोफेसर भी हूँ कि इतनी गलत अंग्रेजी बोलते हैं लोग, लेकिन वो धड़ धड़ बोलते हैं ना, तो सामने वाला जिसको नहीं आती है वो सोचता है कि बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोल रहा है। उसमें इतनी सारी गलतियां बोलते हैं वो। डेढ़ लगा दिया तो आप उसके बाद मूल उसकी वर्ब आएगी, ये उसको मालूम नहीं है, बट ही स्पीकिंग इन इंग्लिश। सो आप ये मेंटालिटी अभी जो सिनेरियो चेंज हो रहा है, पूरी दुनिया तो सीख ही रही है। पूरी दुनिया के मैंने आपसे पहले बोला, ओलंपिक में अगर स्वयं सेवक हिंदी में आ गया है, इसका मतलब आप सोचिए कि वो लोग कितना हमारा मार्केट ग्रैब करना चाहते हैं। तो हमारे बच्चे तो विदेशों में जाकर सीख ही जाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर है वो अपनी अपनी भाषाओं को कवर करने के लिए बोलते हैं कि हिंदी को, अरे नहीं भाई, हिंदी के बगैर ये चलेगा नहीं। हिंदी का अपना स्टेटस, आप देखिए गूगल में आज सबसे ज्यादा सर्व करने जाने वाली भाषा हिंदी है। आप उनके रिकॉर्ड्स देखिए। और हमारे प्रधानमंत्री से लेकर हमारे सब लोगों को हिंदी में इंटरेस्ट है। और अभी एक एमपी का मुझे फोन आया था, मुझे बोले अंजना जी हम साउथ इंडिया में है लेकिन हमको अभी पार्लियामेंट के अंदर हिंदी सीखना पड़ता है। ये भाषा एक एमपी अगर बोल सकता है, बोले मुझे हिंदी सीखना है, तो हिंदी सीखने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है वो तो अब हो ही चुका है। अब ये हिंदी तो रुकने वाली नहीं है। वैसे भी देखिए इतने सालों की मेहनत है और हम आम लोगों तक पहुंच गए हैं। आम दुनिया इंडिया में आना चाहती है और बहुत सारी चीजें हमें ही दुरुस्त करनी है, बाहर वालों को नहीं करनी है। बाहर वाले तो हमारी संस्कृति में इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमारे बच्चों को भी ले जा रहे हैं, हमारा सब कुछ ले जा रहे हैं, लेकिन हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। हमको ही अपने आप को बदलना है। अरे भाई हम हिंदी में बोलते हैं, मैं तो उस दिन की देखती हूँ कि यहाँ से जाएंगे तो हम IELTS पढ़ के जाएंगे। क्यों भाई हम IELTS क्यों करेंगे? तो वहां से आने वाले जितने भी लोग हैं उनको भी हिंदी पढ़ के आना चाहिए। ये सिनेरियो तो नहीं खड़ा होगा। मैं तो बहुत विश्वास के साथ कह रही हूँ। સાચી વાત છે નહીં કરવું પડશે ને આજનું યુવા પેઢી જે છે યંગસ્ટર જે છે એ લોકોએ પણ આનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજવું પડશે કારણ કે એ જ આ ધરોહરને સાચવી શકે છે અને રાષ્ટ્રભાષાને વધારે સન્માન અપાવી શકે છે શરદભાઈ આપની પાસે આવવા માંગુ હવે એક સીધો સવાલ એના મહત્વ સાથે સંકળાયેલો છે હિન્દી ભાષાનું મહત્વ અને આપ શું કહેવા માંગશો કઈ રીતે એની અંદર કરિયર બનાવી શકાય તમારું ભવિષ્યની ઉજ્જવળ તકો હિન્દી ભાષાની અંદર કઈ છે યુવા પેઢીને કઈ રીતે સમજાવવું પડશે આપણે ऐसा है कि अभी जो मेरे मन में जो ख्याल है कि अंग्रेजी भाषा से ही आप सब कुछ कर सकते हैं, उस ख्याल को सबसे पहले मिटाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति एक सद्भाव होना चाहिए, एक सम्मान होना चाहिए। इसी तरह हिंदी के प्रति भी एक सम्मान की भाषा होनी चाहिए, ऐसा हमें समझना है, उसे हमें अपनाना है। जब तक हम हिंदी पे बोलने में शर्म आती है ऐसा समझते हैं और अंग्रेजी भाषा के विरोध में कुछ बात करते हैं, तो भाषा के विरोध की बात नहीं है। यहाँ बात है एक सम्मान की, एक चेतना की, एक सज्जनता की, जो हिंदी से मिलती है। हिंदी से प्रेम की भाषा भी है, वहाँ हिंदी में बोलने से प्रेम भाव भी बढ़ता है, आत्मीयता बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है। आज समझो कि भारतवर्ष में पिछले 300 साल से अंग्रेजी का प्राधान्य रहा है। आप समझो कि यह संसद के बाद छोड़कर आप जनता तक अंग्रेजी भाषा जानने वाले कितने लोग हैं? आप एक छोटे से व्यापारी के पास भी अगर कुछ लेना है तो हम अपनी भाषा से बात करेंगे। हम किसी बड़े होटल में भी जाएंगे तो वहां कुछ ऑर्डर देना है
तो वहां अंग्रेजी में नहीं, अब हिंदी में बात करते हैं वो, और वो वेटर हमें वो देता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी से होता है। आज हम हवाई जहाज में भी जाते हैं, वहां भी परिचायक को हिंदी आना जरूरी है। हिंदी में बातचीत करते हैं, हिंदी में जो कुछ होना है वो देते हैं। इतना ही नहीं, हिंदी में रोजगार बढ़ा है। अभी अंजना जी ने बताया कि हिंदी में रोजगार बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि हिंदी में रोज, आप सिर्फ हिंदी को हिंदी भाषा के रूप में मत देखो, उसे राष्ट्रभाषा के रूप में देखो, अपने सम्मान की भाषा के रूप में देखो, अपने प्रेम की भाषा के रूप में देखो, अपने संविधान की भाषा के रूप में देखो, एक आदर के रूप में देखो, तो वो सब दिखाई देगा। रोजगार के लिए सिर्फ हिंदी शिक्षक और हिंदी प्राध्यापक होना जरूरी नहीं है। अभी अखबारों के लिए भी हिंदी अनिवार्य हो रही है, अनुवादकों के लिए भी चाहिए। आप जैसे व्यक्तियों के लिए जो टीवी चैनलों में काम करते हैं, कुछ कलाकारों के लिए भी हिंदी चाहिए। आज कितनी चैनल है, सब चैनल हिंदी में आ रही है, वो सब कलाकार हिंदी में काम कर रहे हैं, वो सब हिंदी आती है तो वो काम कर सकते हैं। ये रोजगार की बात है, ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है। સાચી વાત છે। आकाशवाणी में उद्घोषण के लिए भी आप देखो, हिंदी में कितना अच्छा उद्घोषण करते हैं, पैसा मिलते हैं। हिंदी अधिकारी भी हो, अभी सब जगह पर बैंकों में हिंदी अधिकारी की भी जगह मिल रही है। यार हिंदी का वातावरण बढ़ रहा है, थोड़ा समय लगेगा हिंदी સાચી को વાત अपने છે। स्थान हाँ, आने में। आज आप समझो कि आज तो हिंदी को मातृभाषा से राष्ट्रभाषा तक गई, वो आज हिंदी राष्ट्रभाषा से विश्व भाषा की विजय यात्रा पर है। और एक दिन ऐसा होगा कि राष्ट्रभाषा बने या न बने, विश्व की भाषा तो जरूर बनेगी, यूरो उसे स्वीकार करेगी। तब हम अपने देश में राष्ट्रभाषा को बनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। સાચી વાત છે અને આપણે કરવું જ જોઈએ, કારણ કે તમે માત્ર પોતાના સ્ટેટસને સેટિસ્ફાઈ કરવા માટે કદાચ ઇંગ્લિશ શીખી લો, ઇંગ્લિશ શીખવામાં કોઈ જ ખોટું નથી। હા, તમારે શીખવું જોઈએ, દરેક નવી વસ્તુને ચોક્કસ શીખવું જોઈએ અને એક્સેપ્ટ કરવી જોઈએ, પણ પોતાની જે વસ્તુ છે, પોતાની જે ખાસિયત છે એને ભૂલીને નહીં। તમે ક્યાંય પણ જશો, હિન્દી બોલશો, તમારું પ્રભુત્વ એટલું જ પડશે જે તમે વિચારી રહ્યા છો તમારી ઇમેજિનેશનમાં કે કદાચ હું ઇંગ્લિશ બોલીશ તો પડશે, પણ ના, એવું નથી। તમે ભારતને રિપ્રેઝેન્ટ કરી રહ્યા છો। દરેક ખેલાડીઓ, અત્યારે આપણે ઓલિમ્પિક પણ જોયું છે, દરેક ખેલાડીઓએ ત્યાં જઈને પણ હિન્દીને એટલું જ વધારે સન્માન આપ્યું છે અને એટલું જ વધારે માન આપ્યું છે। વડાપ્રધાન પણ જ્યારે પોતાના ટૂર કરતા હોય છે, ખાસ કરીને ટ્રાવેલ કરતા હોય છે, ત્યારે પણ હિન્દીને એટલું જ પ્રાધાન્ય આપતા હોય છે અને એના પરથી આપણે શીખવું જોઈએ, ખાસ કરીને યુવા પેઢીએ, કારણ કે ગાંધીજીએ જ્યારથી હિન્દી ભાષાને રાષ્ટ્રભાષા તરીકેના દરજ્જો મળવા જોઈએનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીમાં ચોક્કસ હિન્દીને વિશેષ દરજ્જાઓને મહત્વ વધ્યું છે, પણ હજુ પણ આપણે મહત્વ વધારવાની જરૂર છે, આ ભાષાને વધુ સમજવાની જરૂર છે। સમયની મર્યાદા છે માટે કાર્યક્રમમાં રજા લેવાનો સમય થઈ રહ્યો છે। શરદભાઈ અને અંજનાબેન, આ બંને અમારી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાયા, આ બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તો દર્શક મિત્રો, અમારી વિશેષ રજૂઆત કાર્યક્રમ હિન્દી દિવસમાં આજ બસ આટલું જ। ફરી મળીશું નવા વિષય સાથે, નવી ચર્ચા સાથે। ત્યાં સુધી મને આપશો રજા। નમસ્કાર।